لیکن جب فتح کرتے ہیں ایران کو، ایران کے محل میں جاتے ہیں، کسرا کے تخت میں جاتے ہیں، اور بڑے ندامت کے ساتھ، کوئی ایروگینس نہیں، اور یہی سنت وہاں پہ بھی دہراتے ہیں، وہاں پہ بھی وہ وہی نماز ادا کرتے ہیں۔ اور اکثر روایتوں میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن 8 رکعتیں نماز پڑھی، اور سعد ابن ابی وقاص بھی 8 رکعتیں نماز پڑھتے ہیں۔ یہ پیغام دیتے ہیں دنیا کو کہ مسلمان جب بھی کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں، وہاں کا جو سوسائٹی ہے اس کو آرڈر دینے کے لیے آتے ہیں، جسٹس پریویل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ہم بستیوں کو اجاڑنے نہیں آتے، ہم بستیوں کو تباہ کرنے نہیں آتے، ہم لوگوں کی عصمت، عزت، آبرو، وقار وہ لوٹانے آتے ہیں۔ اور جو کہ ایران کی سویلائزیشن آپ کو پتا ہے کیا کر رہی تھی اپنے سبجیکٹس کے ساتھ، سبجیکٹس کا مطلب ہے کامن میسز کے ساتھ۔ سعد ابن ابی وقاص نے یہ پیغام دیا، ان کی سیرہ سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے، انہوں نے ایران کو کیسے فتح کیا، کسرا کے تخت پہ وہاں پہ وہ گلچھرے نہیں اڑائے، قدامت اختیار کری۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ جی اسکرین ویزیبل ہے؟ یس یس سر۔ چلیں ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ علی کل حال، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد واہل بیت محمد وازواج محمد وذریات محمد وامت محمد، آمین اللہم آمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا من السماء بما كانوا يفسقون، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ چلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کو بیک ڈراپ ہوگا کہ ہم بنی اسرائیل کا فیز ڈسکس کر رہے ہیں، اور آخری ٹائم اگر آپ کو یاد ہوگا، کس کس کو یاد ہے یہ کہ ہم نے لاسٹ سیشن کنکلوڈ کیا تھا، میں نے آپ کو ایک سسپینس رکھا تھا کہ اگر بنی اسرائیل کو من اور سلوہ مل رہا تھا، کیا وہ بور نہیں ہو سکتے تھے انہیں وہ کھانے سے؟ لیکن آپ امیجن کریں ایک ایسی سویلائزیشن ہے جو ایک ہی کھانا بریک فاسٹ میں بھی کھاتی ہے، لنچ میں بھی کھاتی ہے، اور ڈنر میں بھی کھاتی ہے۔ یاد ہے کسی کو؟ بتائیں ذرا، ابھی اپنا مائکرو فون آن کر سکتے ہیں آپ، اور اسپیسیفک ٹائم۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی 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 سر یاد ہے۔ جی چلیں ٹھیک ہے۔ تو آپ کو آئیڈیا ہے کہ ہم نے بیک ڈراپ میں کیا ڈسکس کیا ہے، کہ لاسٹ ٹائم جو ہم نے سیشن لیو کیا تھا، تو میں نے یہی سسپینس آپ کے ساتھ یہ ڈسکس کیا، یہ سسپینس بنا کے رکھنا چاہتا تھا میں، اسی چیز کو ہم انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے کہ لاسٹ سیشن میں آپ کو یہ ریئلائز ہوا کہ دیکھیں ایک ایسی سویلائزیشن ہے، انہیں کتنا بھی عمدہ کھانا ملے لیکن ہے تو ایک ہی کھانا، من اور سلوا، من اور سلوا، من اور سلوا۔ ابھی دیکھیں اس کا جواب آپ کو آج ملے گا، اور آپ خود بخود اسے ٹریس آؤٹ کر پائیں گے کہاں آپ کو جواب ملے گا۔ تو ہم آیا کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن اس پس منظر کو، بیک ڈراپ کو ذہن میں رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا، یاد کرنے کے قابل بھی ہے وہ قصہ۔ کون سا قصہ؟ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادخلوا هذه القرية، جبکہ ہم نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جبکہ ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ داخل ہو جاؤ اس بستی میں۔ قریہ کہتے ہیں بستی کو، لیکن اس کا روٹ ورڈ جو اگر آپ دیکھیں گے، وہ روٹ ورڈ جو قریہ کا ہے وہ ایکومولیٹ ہونا، کسی چیز کا جمع ہونا، اسے کہتے ہیں قریہ۔ اور اکثر آپ اگر عربک کنوٹیشنز دیکھیں گے، کیونکہ عرب کا جو ماحول تھا وہ جو کیٹل ریئرز بہت زیادہ تھے، وہ اونٹ رکھتے تھے، تو ان کا یہ اکثر یہ جملہ نکلتا تھا قر المعافل، قر المعافل، اکثر یہ نام دیتے تھے وہ، کہ جب بھی ان کو سویلائزیشن یا اپنے اونٹ کہیں رکھنے ہوتے تھے، وہ اپنے جو بھی ان کے ساتھ خادم ہوا کرتے تھے، تو وہ انہیں یہی لفظوں سے پکار رہے تھے، کیا حوض میں پانی جمع ہو گیا، کیا حوض میں پانی جمع ہو گیا، حوض کہتے ہیں ویل کو۔ تو یہ اکثر ان کے سویلائزیشنل ہسٹری میں ملتا ہے ہمیں کہ اکثر یہ کامن ٹرمینالوجی تھی وہاں پہ، اور یہی کامن ٹرمینالوجی اب وہ جو بھی کوئی چیز وہاں پہ کوئی جمع کرنی تھی، فار ایگزامپل کوئی گیدرنگ جمع ہو گئی، اب وہ اس فائنل ٹائم میں یہی پروورب کا استعمال کرتے تھے، قر المعافل، کیا جمع ہو گئے، کیا پانی جمع ہو گیا، تو انہوں نے یہ نعرہ اکثر ڈائسیمنیٹ کر رکھا تھا۔ تو یہاں پہ بھی دیکھیں، جو میں یہ فریز اس وجہ سے بولا کیونکہ وہاں پہ لفظ آیا قریہ،
तो करा जो वो लफ्ज इस्तेमाल करते थे, इसका माना ये था जमा होना, एक्युमुलेट होना, और इसी से निकला है करिया। उसी करा से निकला है करिया। करिया के माने होते हैं जमा होना। अब ये करिया बस्ती के लिए क्यों इस्तेमाल हुआ? इसकी दो वजह है। एक वजह यह है कि बस्ती का मतलब ही हुआ कि जब जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो जमा होते हैं तो वो बस्ती की शक्ल बनती है। फैमिलीज आपस में कंसोलिडेट होते हैं तो वो बस्ती की शक्ल में बनते हैं। और जो जमा होना, पानी का जमा होना ही सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी बुनियाद है। जहां पे पानी अवेलेबल ही नहीं होगा, सिविलाइजेशन डेवलप कैसे होगी? आप यहाँ पे देखें, एंशियंट सिविलाइजेशन हुआ करती थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बाय द नेम इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो हमने नाम क्यों रखा उसे इंडस वैली? बिकॉज ऑफ द रिवर इंडस। तो आपने ये हिस्ट्री में ये पैटर्न देखा होगा कि उमूमन जो भी सिविलाइजेशंस डेवलप होती है, इट इज बिकॉज ऑफ द नियर बाय रिवर। इजिप्शियन सिविलाइजेशन देखें, वहां पे रिवर नाइल था, वो वहां पे डेवलप हुई थी। चाइनीज में जो येलो रिवर है आज का, यांगसो रिवर है, येलो रिवर है, वहां पे चाइनीज सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी। तो इसी पैटर्न को आप जहन में रखें कि करिया कहते हैं पानी जब जमा होता है, उस जमा होने को कहते हैं करिया। उसी से ये लफ्ज डाइसमिनेट हुआ, ये इसका रूट वर्ड है, और यही बस्ती के लिए इस्तेमाल होता है। माइक्रोफोन अपना ऑफ रखें। आई डोंट वांट एनी अननेसेसरी डिस्टरबेंसेस प्लीज। से बात करना। आई थिंक दानिश, मैंने आपको को होस्ट बना दिया, इन्हें म्यूट कर लिया, मैं वापस नहीं जा सकता स्क्रीन में। जी। तो वइज़ क़ुल्ना दुख़ुलू हादिहिल क़रिया, याद करने के काबिल भी है वो किस्सा कि जब हमने आपसे कहा, बनी इसराइल से कहा कि दाखिल हो जाओ उस बस्ती में। और बस्ती के लिए करिया जो लफ्ज आया उसकी मैंने वजाहत कर दी, कैसे जमा होने को ये जो रूट वर्ड है इसका, इसी से बस्ती लफ्ज निकला है, करिया लफ्ज निकला है। लेकिन ये कौन सी बस्ती थी, कौन सी सिविलाइजेशन थी ये, किसके बारे में इन्हें अल्लाह ताला बताते हैं इस बस्ती में दाखिल हो जाओ? ठीक है। अब देखिए, ये जो बस्ती के जो कनोटेशन है, ये एक बड़ा टाउन भी हो सकता है, कोई मेजर सिटी भी हो सकती है, और छोटी सी बस्ती भी हो सकती है। तो लेकिन जो हमें अक्सर तौरा से भी इसकी रेफरेंसेस मिलती है, मुफस्सिरीन ने भी ये कोट किया है, जो अरीहा बस्ती है जिसे आप इंग्लिश में जरीको के नाम से जानते हैं, जो आज का वेस्ट बैंक है, पैलेस्टाइन में जो वेस्ट बैंक है, उसमें एक पर्टिकुलर सिटी है जरीको के नाम से। आपने रीसेंट पास्ट में 24 से बहुत ज्यादा न्यूज में रही है जेरिको सिटी। ये वेस्ट बैंक में एक पर्टिकुलर सिटी है, आज भी ये अवेलेबल है वहां पे, और यही नाम से पुकारी जाती है, जेरिको के नाम से। और यही बस्ती अमूमन मुफस्सिरीन की रेफरेंस है, इख्तिलाफ कर सकते हैं आप, लेकिन मेजॉरिटी जो हमें रेफरेंस बुक्स में मिलते हैं, और जो तौरा में भी इसी सिटी का जिक्र है जेरिको के नाम से, तो ये वहां पे वो बस्ती थी। ठीक है। तो ये आप हिस्टोरिकल अकाउंट्स ले सकते हैं, इसमें आप इख्तिलाफ की गुंजाइश कर सकते हैं, बट मोर प्रिसाइजली यही है जेरिको सिटी। ये प्रेजेंट में वेस्ट बैंक की एक सिटी है जेरिको। ठीक है। तो इसे हम अरबी में, उर्दू में अरीहा के नाम से जानते हैं, और इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन जाता है जेरिको। और ये यही इसी सिटी के बारे में आता है कि इन्हें इसी सिटी में बोला कि यहाँ पे दाखिल हो जाओ। और अल्लाह ताला देखिए अगला स्टेटमेंट क्या बताते हैं। अल्लाह ताला इन्हें फरमाते हैं, याद करने के काबिल भी है वो किस्सा जब हमने आपसे कहा कि सिटी में दाखिल हो जाओ। फिर अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, फकुलू मिनहा हैसु शिअ्तुम रगदा। अब क्या करना है तुम्हें? अल्लाह ताला इन्हें बताते हैं, बस खाओ उसमें से जहां से चाहो, जहां से मर्जी है वहां से खाओ, बफरागत के साथ, क्योंकि लफ्ज आया रगदा। रगदा कहते हैं बिल्कुल फ्री होके, कोई जबरदस्ती नहीं करेगा आपके ऊपर कि नहीं सिर्फ यही एक खाना खाना है, बस वही एक चीज खानी है आपको। ये डॉट कनेक्ट हुआ, ये थ्रेड आपको मेंटेन हो गया, जो हमने पिछले आया में वो सेशन छोड़ा था। वहां पे मैंने क्या आपको बताया था वहां पे, कि क्या एक ही खाना खा के इंसान बोर्डम का शिकार नहीं होगा? भाई कितना भी लजीज खाना हो, मुझे हर दिन ही वो दिया जाएगा, ब्रेकफास्ट में भी, लंच में भी, डिनर में भी, क्या मैं बोर नहीं होऊंगा? कॉमन सी बात है, मैं एग्जॉस्ट हो जाऊंगा एक ही खाना खा के। लेकिन अल्लाह ताला इन्हें यहां से ही क्या दे रहे हैं जवाब। जवाब में क्या कहते हैं अल्लाह ताला? याद करने के काबिल भी है वो किस्सा जब हमने आपसे कहा कि उस बस्ती में दाखिल हो जाओ और खाओ वहां बफरागत के साथ, जो मर्जी है वहां खाओ। तो इसका मतलब अल्लाह ताला ने इनके लिए रास्ता रखा था, जाइए वहां पे जो मर्जी है खाएं आप। कुछ महीने वहां पे वो सहरा में, सीनाई पेनिनसुला में गुजारे, और अल्लाह ताला का हुक्म आया, ये बस्ती सामने पड़ी है, नेबरिंग स्टेट है, वहां पे जाओ, इसमें बफरागत के साथ खाओ, इसको अपनी रिहाइश बनाओ। अभी देखें आप ये, लेकिन यहाँ पे एक चीज में एक लिंग्विस्टिकल जिम है, यहाँ पे एक बड़ा खूबसूरत टर्म है। यहाँ पे मैं यहाँ पे आपको एक चीज बोलने वाला हूं, देखें, यहाँ पे फोकस करें आप। यहाँ पे रगदन लफ्ज आया ना आखिर में,
یہ वर्ड आपको नजर आ रहा है, वइज़ क़ुलना दुख़ुलू हाज़िहिल क़रिया फ़कुलू मिन्हा हैसु शिअ्तुम रगदा। रगदा लफ्ज यहाँ पे भी आया, और यही पैटर्न आप जब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किस्सा हमने देखा आयत नंबर 35, इनफैक्ट मैं दिखाई देता हूं आपको क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। जी जी, देखें, आप देखें यहाँ क्या आया, वकुलना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्ना वकुलू मिन्हा रगदन हैसु शिअ्तुमा। यहाँ पे भी रगदन आया, लेकिन पहले लफ्ज आया। देखें, रगदन यहाँ पे भी आया, वहां पे भी लफ्ज आया, लेकिन यहाँ पे रगदन पहले आया। इसके माना क्या होंगे? यहाँ पे भी इन्हें आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरह बताया गया कि जो मर्जी है खाओ। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को क्या कहा गया था? बफरागत के साथ जो मर्जी है जन्नत में खाओ। इन्हें भी कहा गया जो मर्जी है खाओ, लेकिन यहाँ पे आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के किस्से में रगदन पहले आया, और जब बनी इसराइल की बात आई उस टीम में एंटर करने के लिए, जेरिको टीम में, वहां पे रगदन आखिर में आया। इसकी वजाहत क्या है? यहाँ पे लिंग्विस्टिकल मोजज़ा देखें आप। कुरान में कोई चीज अगर कोई सब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट अगर रिप्लेस होता है, उसमें मोजज़ा छुपा होता है। इसके माने ये है कि अगर रगदन पहले आया तो इसका माना है कि यहाँ पे हर कोई चीज आप खा सकते हो, कोई भी चीज, क्योंकि जन्नत है, वहां पे तो है कुन फयकून। वहां पे जन्नत में जो चीज आप डिमांड करेंगे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे रगदन आया पहले, यानी आप फ्री हो, जो चीज चाहते हो खाओ। लेकिन आप बनी इसराइल का देखें, आप बनी इसराइल के मामलात में वापस चलते हैं। यहाँ पे जब रगदन लफ्ज आया, यहाँ पे जो रगदन लफ्ज आया, इसके माना देखें आप। यहाँ पे आखिर में आया, वहां पे सेंटेंस में पहले था, यहाँ पे बाद में है। इसका मतलब क्या है? अल्लाह ताला यहाँ बताते हैं यहाँ पे आप आजाद हो, लेकिन उन गिवन सर्कमस्टेंसेस में आजाद हो। गिवन सर्कमस्टेंसेस जो वहां पे मटेरियल अवेलेबल था, यहाँ पे यानी कि हर कोई चीज यहाँ पे अवेलेबल नहीं है आपको। जो चीज आप ख्वाहिश करो वो मिले। फॉर एग्जाम्पल, सब कॉन्टिनेंट में कोई क्रॉप उगता है, वो हो सकता है वहां पे उस टीम में वहां पे अवेलेबल ना हो, लेकिन अल्लाह ताला यहाँ पे बताते हैं जो वहां पे अवेलेबल है, उस उस गिवन मटेरियल में, उन गिवन रिसोर्सेस में जो मर्जी है वो खाओ। इसी वजह से रगदन आखिर में आया। उससे पहले जो आदम अलैहिस्सलाम के किस्से में आया, वहां पे ये माना था कि यू आर फ्री टू कंज्यूम वट एवर यू वॉन्ट, जो आपके जहन में है वो आप खा सकते हो। लेकिन यहाँ पे आया, तुम यहाँ पे खाओ, लेकिन उन वसाइलों में जो वहां पे अवेलेबल है, उसमें तुम फ्री हो। यानी कि तुम ऐसे डिमांड नहीं कर सकते कि मुझे कोई ऐसी चीज चाहिए जो वहां पे उस जमीन पे अवेलेबल नहीं है। तो इसी वजह से यहाँ पे रगदन आखिर में आया। तो इस चीज को समझे आप। तो ये ऐसे ही होगा, फॉर एग्जाम्पल आदम अलैहिस्सलाम के किस्से में यू आर फ्री टू कंज्यूम वट एवर यू वॉन्ट, और यहाँ पे आएगा यू कैन ईट फ्रॉम इट वेर एवर यू विच, या वेर एवर यू फाइंड इट फिजिबल, यू आर फ्री टू कंज्यूम, मगर गिवन रिसोर्सेस में। इस चीज को समझे आप। इसी वजह से यहाँ पे अलग अलग रगदन जो लफ्ज आया, इसकी लिंग्विस्टिकल मोजज़ा क्या है इस कुरान का, ये यहाँ पे एम्फसाइज करना जरूरी था। तफसीर का हवाला नहीं है ये, लेकिन कुरान में हर कोई चीज यूं ही तुक्के से नहीं आई है, इसी वजह से इसको एम्फसाइज करना बहुत जरूरी था। रगदन क्यों अलग अलग रिप्लेस जब वर्ड होते हैं, उसमें भी एक मौजूदा छुपा होता है। आगे चले, अब अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्हें, फकुलू मिन्हा हैसु शिअ्तुम रगदा। अब इसमें तुम फ्री हो, जहां से मर्जी है वहां से खाओ, लेकिन उन गिवन रिसोर्सेज में। तो इसका मतलब वो जवाब आपको मिल गया। अल्लाह ताला इनका इम्तिहान इस माना में नहीं लेना चाहते थे कि भाई तुम्हें सिर्फ मनो सलवा खाना है। अल्लाह ताला ने इनके लिए आसानी रखी थी, अल्लाह ताला ने इनके लिए आसानी चाही, लेकिन इन्होंने क्या किया? आगे देखें आप। अल्लाह ताला इन्हें आगे फरमाते हैं, वदखुलुल बाब सुज्जदन वक़ूलू हित्ततुन नगफिर लकुम। अल्लाह ताला इन्हें फरमाते हैं, और दाखिल हो जाओ दरवाजे में से सर झुकाए हुए, नदामत के साथ। अब इस दरवाजे से दाखिल हो जाओ। पहले तो आप ये समझे, जब यहां तक हमने आयत का टुकड़ा पढ़ा, वइज़ क़ुलना दुख़ुलू हाज़िहिल क़रिया फ़कुलू मिन्हा हैसु शिअ्तुम रगदा, जब यहां तक हमने पढ़ा, ये पहला वाला किस्सा है। अब इसके बाद जो अगला वाला टुकड़ा है, उसमें फासला है 40 साल का। गौर से सुने, मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगा। देखें, यहां से वइज़ क़ुलना दुख़ुलू हाज़िहिल क़रिया फ़कुलू मिन्हा हैसु शिअ्तुम रगदा, ये एक स्टोरी अल्लाह ताला बताते हैं, क्योंकि इससे पहले सूरह आराफ, सूरह माइदा, सूरह तौहा में इसकी वजाहत हो गई है, और बनी इसराइल इस चीज से बखूबी वाकिफ है कि हमारी हिस्ट्री कैसी है। और मुसलमानों के लिए इससे पहले एक किस्सा गुजरा जो बाकी सूरतें हैं, क्योंकि हम मुसहफ की तरतीब आप समझ रहे हैं, हमारे लिए हिस्ट्री जानना जरूरी है। मैं आपसे बता रहा हूं, अब जो यहाँ पे आने वाला जो फेज होगा, वदखुलुल बाबा, इसमें 40 साल का फासला है।
इस चीज को समझे आप, अल्लाह ताला इस टाइम को मर्ज कर रहे हैं। अब ये फौरन उस टाइम नहीं हुआ, अल्लाह ताला बताते हैं वदखुलुल बाब सुज्जदा, लेकिन इस और इसमें दरमियान 40 साल का फासला है, 40 ईयर्स। अब ये 40 साल थोड़ा बहुत मैं समराइज कर लूं ताकि आपको ये आया समझ आए। देखें, पहले तो आप ये समझे अल्लाह ताला इन्हें बता रहे हैं कि नदामत के साथ इस दरवाजे से दाखिल हो जाओ। ये दरवाजा क्या था? ये दरवाजा आपको पता है कि हर किसी सिटी में एक दरवाजा होता है, गेटवे होता है। आप कश्मीर आते हैं तो एक गेटवे है टनल की शक्ल में। तो उस टाइम हवाई जहाज नहीं थे, तो ये रोड ही थे, बाईपासेस थे। तो इस चीज को आप समझे, हमेशा हर कोई सिटी के एंट्रेंस में कोई पास होता है, कोई गेटवे होता है। तो उसी चीज को अल्लाह ताला ने यहाँ पे कोट किया, इस दरवाजे से दाखिल हो जाओ, लेकिन सर झुकाए हुए। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो हमने इससे पहले पढ़ा, बफरागत के साथ खाओ जो मर्जी है वो करो, यहाँ पे इन गिवन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करो। लेकिन आगे जो लफ्ज आया वदखुलुल बाबा, इसमें 40 साल का फासला है। आप देखें, इस हिस्ट्री को समझना बहुत जरूरी है। जब अल्लाह ताला ने इनसे कहा कि आप इस सिटी में एंट्रेंस करो, इस सिटी में एंटर हो, आपको पता है इन्होंने जवाब क्या दिया? इन्होंने जवाब में कहा कि हम इस सिटी को हम कैप्चर करेंगे जहां पे बड़े जब्बार इंसान हैं, बड़े बड़े बहादुर इंसान हैं। हम तो इनसे नहीं लड़ेंगे। यहां तक कि ऐसे लफ्ज आते हैं कि इन्होंने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा, ए मूसा, आप और आपका रब जाने ये किस्सा, आप लड़ो, हम नहीं लड़ने वाले। आप देखें इनका इनका ये एटीट्यूड देखें आप अपने वक्त के नबी के साथ। और वो नबी जो कि बड़े जब्बार थे, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो बड़े करिज्मेटिक पर्सनैलिटी थे। वो ऐसे इंसान नहीं थे बस दब जाएं, बड़े वो लतीफ इंसान के माने नहीं थे। लतीफ आप ये समझे कोई नेगेटिव कनोटेशन में ना ले इसे, लेकिन वो बड़े जब्बार इंसान थे, जैसे उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु का पर्सनैलिटी थी। बड़े जब्बार, बड़े गैरत पसंद इंसान। अब वो देखिए, वो कोई ऐसा इंसान होता है जो बड़ा शरीफ नफ्स मिजाज होता है, इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी होती है, लेकिन कोई एक्सट्रोवर्ट होता है, उसे ये सडन शॉक मिलता है वहां से कि हमने इनके ऊपर इतनी सारी नियामतें की, उसका इम्तिहान, उनके पेशेंस बहुत ज्यादा इसमें काम आ सकते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु एक इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी थे, लेकिन हजरत उमर रजी अल्लाह तआला एक एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी थे। और इसी मिजाज के आप इंसान समझे हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्हें कहते हैं कि आइए, अल्लाह ताला का हुक्म है इस सिटी में एंटर होना है, जवाब में कहते हैं जाइए आप और आपका रब जाने, हम तो नहीं ये कैप्चर करेंगे इस सिटी को। हो सकता है वो हमें एंट्रेंस ना दे, हो सकता है हमें लड़ाई करनी पड़े। कौन करेगा ये लड़ाई? और वहां पे उस टीम में जुल्म हो रहा था। अब अल्लाह ताला ने, अब ये वक्त के खैर थे, वक्त के इमाम थे उस टाइम, क्योंकि इनको नबूवत मिली थी इनके एक फर्द में, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इनको एग्जोडस मिला, फिरौन से नजात मिली। अब इनकी ऑब्लिगेशन भी तो थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो थी। तो अब ये रेस्पॉन्स में कहते हैं जाइए आप और आपका रब जाने, हम तो नहीं लड़ने वाले। फिर जाके अल्लाह ताला इन्हें पनिशमेंट की शक्ल में 40 साल तक वहां पे उसी सहरा में रखते हैं। तभी जाके इनका रेस्पॉन्स आगे चलकर हम पढ़ेंगे। ये कहते हैं, ए मूसा ए मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हम तो थक गए मन और सलवा खा के। अब देखिए, ये अल्लाह ताला ने पहले ही बताया था इनको, जाइए उस शहर में दाखिला लीजिए, वहां आप बफरागत के साथ जो मर्जी है खा लो। लेकिन जब इन्होंने नहीं माना, तो अल्लाह ताला ने इनको कहा जाओ। और मैं कहता हूं अल्लाह ताला का फिर भी फजल है, अल्लाह ताला ने इनको मन और सलवा बंद नहीं किया, कम से कम बेसिक सर्वाइवल मीन्स तो दे दिए, मन और सलवा जारी रखा। ये अल्लाह ताला का फजल था। अल्लाह ताला चाहता तो मन और सलवा भी रुका सकता था, हलाक हो जाए सारी बनी इसराइल, अल्लाह ताला को क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अल्लाह ताला का फजल है, इन्होंने, अल्लाह ताला ने इनको मोहलत दी, फिर भी मन और सलवा जारी रखा। फिर इनका आगे रेस्पॉन्स आएगा, ए मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हम तो थक गए, हम तो थक गए। ब्रेकफास्ट में भी है हमें मन मन और सलवा, लंच में भी हमें मन व सलवा, डिनर में भी हमें मन और सलवा। ये बोर्डम का शिकार हो गए हम लोग। ए मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जाओ अल्लाह ताला से बात करो इस बारे में, कोई मीन्स इख्तियार करो, कोई वे फॉरवर्ड निकालो इसमें। लेकिन ये शामत, ये जुल्म इन्होंने अपने आप पे किया, जो कि इससे पहली वर्स में आया। क्या था? वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून। इन्होंने नहीं किया जुल्म मगर अपने आप पे, अल्लाह ताला को क्या बिगाड़ा? ये जवाब सुने आप, वापस आयत पे आते हैं। तो जब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इन्होंने ये रेस्पॉन्स दिया, तो अल्लाह ताला ने इनको अजाब की शक्ल में 40 साल इस सहरा में रखा, यही खाना, सेम मन और सलवा। लेकिन मैं कह रहा हूं आपसे, ये सजा नहीं थी, अल्लाह ताला की तरफ से मोहलत थी। अगर सजा होती तो अल्लाह ताला मन और सलवा भी हटा सकते थे। फिर जाके इसी स्पैन ऑफ टाइम में, ये 40 साल में, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की भी वफात होती है, वो इस दुनिया से रुखसत होते हैं। हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी रुखसत होते हैं। पहले हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया से चले जाते हैं, उसके बाद मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम।
अब इस 40 साल में क्या होगा, इमेजिन करें, एक सिविलाइजेशन को 40 साल का स्पैन मिला, क्या नई जनरेशन तैयार नहीं होगी? जो अडल्टहुड थी वो एज्ड पर्सनैलिटीज नहीं बने। इमेजिन करें आप, ये एक डिटॉक्स, सोशल डिटॉक्स प्रोग्राम था अल्लाह ताला की तरफ से इनको, कि जनरेशन तैयार हो। अब ये 40 साल वाले, 30 साल वाले, ये कम जहनियत वाले लोग, ये तो समझते नहीं हिदायत को। हो सकता है इनकी नस्ल में हिदायत याफ्ता हो, इनकी नस्ल थोड़ा बहुत हिदायत ले ले, और ऐसा ही हुआ। ये नहीं माने सिटी में एंटर होने के लिए जब तक कि 40 साल का स्पैन नहीं बीच में मिला। जब जनरेशन चेंज हो गई, जनरेशन में अलग ख्यालात, इनोवेशंस, उनके ख्यालात अलग होते हैं। जो कि मैंने रीसेंट जो सेशन भी हमारा था, जो हमारा ऑफलाइन सेशन था, वहां भी मैंने कहा कि अल्लाह ताला हमेशा जवानों से काम लेते हैं। ये नई जनरेशन तैयार हो गई, और इन्होंने फिर ये चीज मानी कि हम वहां पे एंटर हो जाएंगे उस टीम में। लेकिन उनकी उस टाइम जो लीडरशिप, जो उस टाइम सिविलाइजेशन की थी बनी इसराइल की, वो ना ही मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहां पे अवेलेबल थे, ना ही हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम अवेलेबल थे। दोनों वफात पा चुके थे। वहां पे उनका एक सक्सेसर थे, यूशा इब्न नून। यूशा इब्न नून हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बहुत क्लोज शख्स थे। आप ये समझे, एक पर्सनल असिस्टेंट की तरह बड़े क्लोज शख्स थे। उन्हीं की लीडरशिप में फिर ये उस टीम में एंटर होते हैं। और इसकी वजाहत हमें इंशाअल्लाह हम ये सूरह माइदा में पढ़ेंगे। सूरह माइदा में इसकी बिल्कुल डिटेल वजाहत आती है, कैसे अल्लाह ताला इनको बता रहे हैं, कैसे यूशा इब्न नून ने इनको उस सिटी में एंटर होने के लिए इजाजत दी, फिर ये उन्हीं की लीडरशिप में सिटी में एंटर होते हैं। लेकिन ये वाले शख्स नहीं, इनके सक्सेसर्स, इनकी नस्ल में जो लोग आए, फिर जो बच्चे आए, जो अगली जनरेशन थी, वो तैयार हो गई अब सिटी में एंटर होने के लिए। अब आपको समझ आया इसमें कितना टाइम बीता। ये जो वाका मैं आपसे कह रहा हूं, जब अल्लाह ताला ने इनको कहा सी या उस टी में एंटर हो जाओ और जो चाहे मर्जी वो खा लो, इस और इसमें, यहां से और यहां तक 40 साल का फासला है। 40 साल को समराइज किया अल्लाह ताला ने एक ही आयत में, इसीलिए कॉन्टेक्स्ट देना जरूरी था। जी चालीस सर, साल समझ का आ गई। फासला। जी, किसी को कुछ कहना मैंने है? कहा जी समझ आ गई। नहीं नहीं, ओके समझ ओके आ गई बहुत अच्छे तरीके से, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके ओके, प्लीज म्यूट म्यूट योरसेल्फ मैम। जी, म्यूट कर लें। तो इसमें 40 साल का फासला था बीच में, ठीक है। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, वदखुलुल बाब सुज्जदन वक़ूलू हित्ता। अल्लाह ताला आप फरमाते हैं, अब सर झुकाए हुए दरवाजे में से दाखिल हो जाओ। अब सर झुकाए क्या हुआ? क्या सजदा लेके दाखिल होंगे? नहीं। मैंने आपसे, जब हमने आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़ा, वहां पे भी हमने देखा कि आदम अलैहिस्सलाम के सामने जो सजदे की मैंने वजाहत फरमाई, सजदा जरूरी नहीं है कि बिल्कुल जो हम नमाज में जैसा सजदा करते हैं वैसा हो। सजदा अरबी लुगत में कहते हैं झुकने को। ये झुकना रुकू के मानंद भी हो सकता है, थोड़ा बहुत आप किसी के सामने ताजीमन कहीं झुक जाएं, या एक्चुअल प्रोस्ट्रेशन हो, इसमें फर्क है, ये वेरिएशन है। और ये कॉमन सी बात है, जब लोग किसी जगह दाखिल होते हैं और सजदा का लफ्ज आए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहां सजदा होकर दाखिल होना है। इसका मतलब थोड़ा झुकना है, नदामत इख्तियार करनी है, अपने कंधे झुकाने हैं। कोई प्राइड इख्तियार नहीं करनी है, कोई एरोगेंस का एटीट्यूड नहीं कि भाई हम यहाँ कैप्चर हो गए। और ये किस नस्ल के बारे में बात हो रही है? इनके 40 साल वाला बाद ये किस्सा हम पढ़ रहे हैं। ये वो सिविलाइजेशन नहीं थी, वो तो बीत गई, वो भी मर गए। और वहां पे मूसा अलैहिस्सलाम भी अवेलेबल नहीं है, हारून अलैहिस्सलाम भी अवेलेबल नहीं है। उनके अगली वाली नस्ल ये काम कर रहे हैं, और इनसे अल्लाह ताला मुखातिब हैं, फरमाते हैं कि आप जाओ, इस दाखिल हो जाओ, इस टी में, इस टी में दाखिल हो जाओ। और जैसा मैंने कहा, सजदा की जो अलामत है वो नदामत है। जब भी मुस्लिम कम्युनिटी किसी सिटी में, किसी सिटी को कैप्चर करती है, या किसी सिटी को सिविलाइजेशन की शेप देती है, तो वहां पे वो कोई एरोगेंस एटीट्यूड नहीं इख्तियार करते। आप देखिए, मंगोल आए बगदाद में, बगदाद सिटी को तहस नहस किया। कॉन्स्टेंटिनोपल को फर्स्ट 2 शॉक्स दे दिए, कस्तंतुनिया जिसे आप कहते हैं। जहां जहां कोई सिविलाइजेशन, एक रूथलेस सिविलाइजेशन आती है, वो जो एग्जिस्टिंग मॉडल वहां पे सोसाइटी का था उसे तबाह करती है। लेकिन जब मुसलमान किसी शहर में दाखिल होते हैं, वो शहरों को आबाद करते हैं। सीरा सीरा की तरफ नजर डाले, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की तरफ दाखिल हुए, फतेह मक्का के दिन।
اور بالکل یہی ایگزیکٹ شکل تھی، یہی ایگزیکٹ شکل تھی. وہ جھکے ہوئے تھے، ان کے سر جھکے ہوئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وہ سر مبارک تھا وہ نظر نہیں آ رہا تھا کیونکہ وہ جھکے ہوئے تھے. وہ جو اونٹ کی گردن تھی وہ باہر سامنے نظر آ رہی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے جھکے ہوئے تھے، ندامت اختیار کرے ہوئے تھے. یہ پیغام دے رہے تھے کہ میں یہاں پہ بستی کو اجاڑنے نہیں آیا ہوں، میں آباد کرنے آیا ہوں. یہ ہے مسلمانوں کا پیغام. پوری دنیا سے یہ خطاب ہے کہ جب مسلمان کہیں جاتے ہیں وہ اس چیز کو آباد کرتے ہیں، وہ پیس اور آرڈر کو مینٹین کرنا چاہتے ہیں، جسٹس کو پریویل کرنا چاہتے ہیں. وہ شہروں کو برباد کرنے نہیں آتے. غسل فرمایا، نماز ادا کی اور سب کو معافی کا اعلان کیا. ابو سفیان جیسا شخص اس ٹائم ان کی مینٹالٹی تھی، ان کو معاف فرمایا اور یہ تک پیغام دیا جو ابو سفیان کے گھر میں جائے میں اس کو معاف کرتا ہوں. جو اپنے گھروں میں اپنے دروازے بند کر لے اس کے لیے معافی. ہاں لیسن انٹل کوئی خود جا کے تلوار لے لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تو اس کو تو بنتا ہے، وہ سیلف ڈیفenس میں کر سکتے ہیں، لیکن بدلہ نہیں لیا. اٹ واز ناٹ اے ڈے آف ریونج. فتح مکہ کوئی ریونج کا دن نہیں تھا، ورنہ لے سکتے تھے کیونکہ اتنا دیکھیں ایگزائل کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کے صحابہ کو، تو بدلہ لے سکتے تھے لیکن نہیں لیا. یہ ہے مسلمان کا کیریکٹرسٹک، یہ ہے مسلمان کے کنڈکٹس، یہ ہے مسلمان کے مینرز، یہ ہے ان کے ایٹیکیٹس، یہ ہے ان کی سویلائزیشن ایپیٹوم. اور اسی چیز کو دہرایا سعد بن ابی وقاص نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عشرہ مبشرہ میں سے ہے. جنگ قادسیہ ہوتا ہے 8,500 صحابی اور تبع تابعین، میں دہرا رہا ہوں آپ کو، 8,500 صحابہ تابعی شہید ہوتے ہیں اس بیٹل میں. 8,500 آج کے دور میں بھی بہت بڑا نمبر ہے، اس ٹائم کتنا ہوگا؟ لیکن جب فتح کرتے ہیں ایران کو، ایران کے محل میں جاتے ہیں، کسرا کے تخت میں جاتے ہیں اور بڑے ندامت کے ساتھ، کوئی ایروگینس نہیں، اور یہی سنت وہاں پہ بھی دہراتے ہیں، وہاں پہ بھی وہ وہی نماز ادا کرتے ہیں. اور اکثر روایتوں میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن 8 رکعتیں نماز پڑھی تھی، اور سعد ابن ابی وقاص بھی 8 رکعتیں نماز پڑھتے ہیں. یہ پیغام دیتے ہیں دنیا کو کہ مسلمان جب بھی کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں وہاں کا جو سوسائٹی ہے اس کو آرڈر دینے کے لیے آتے ہیں، جسٹس پریویل کرنے کے لیے آتے ہیں. ہم بستیوں کو اجاڑنے نہیں آتے، ہم بستیوں کو تباہ کرنے نہیں آتے، ہم لوگوں کی عصمت، عزت، آبرو، وقار وہ لوٹانے آتے ہیں. اور جو کہ ایران کی سویلائزیشن آپ کو پتا ہے کیا کر رہی تھی اپنے سبجیکٹس کے ساتھ، سبجیکٹس کا مطلب ہے کامن میسز کے ساتھ. سعد ابن ابی وقاص نے یہی پیغام دیا، ان کی سیرہ سے ہمیں یہی پیغام ملتا ہے. انہوں نے ایران کو کیسے فتح کیا، کسرا کے تخت پہ وہاں پہ وہ گلچھرے نہیں اڑائے، ندامت اختیار کری. اور اسی چیز کو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جریسلم گئے، جب وہاں پہ گئے اس ٹائم جریسلم کو کنعان کہا جاتا تھا، ایلیا سوری، کنعان تو پہلے کا نام ہے، اسے ایلیا کہا جاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ. مڈول ٹائمز میں جریسلم کو ایلیا کہا جاتا تھا. کنعان کا پہلا نام ہے اسے، جب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہ آباد تھے، یا جو آج کا ٹائم ہم پڑھ رہے ہیں بنی اسرائیل کا قصہ، اس ٹائم بھی کنعان کہا جاتا تھا. جب لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ آباد تھے، جب عربین سویلائزیشن تھی وہاں پہ، وہ اپنے عروج پہ تھی، اس ٹائم ایلیا کہا جاتا تھا یروشلم کو. جب وہاں پہ داخل ہوتے ہیں تو ندامت کے ساتھ کیا کہ آپ امیجن کریں، وہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا، اونٹ کے اوپر اپنا خادم ہے اور وہ رسی لیے ہاتھ میں اٹھے ہیں، پیور لگے ہیں کپڑوں کے اوپر. اور روایت میں آتا ہے 2 مفہوم نکلتے ہیں، ہمیں 2 روایتیں ملتی ہیں، یا تو عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ آتے ہیں سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، فرماتے ہیں یہ جو یروشلم کے لوگ ہیں، یہ ایلیا کے لوگ ہیں، بڑے لباس پسند لوگ ہیں، انہوں نے سویلائزیشن کو بڑا ٹائم سے ڈیولپ کیا ہے، آپ کے لباسوں پہ تو پیور لگے ہیں، آپ جا کے میرے آفس میں اپنے کپڑے چینج کریں. آپ کو پتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا جواب دیتے ہیں؟ اللہ اکبر، جواب سننے کے قابل ہے، واللہ انسان کی روح کانپتی ہے. سنا ہوگا آپ نے اس سے پہلے بھی، لیکن پھر سے سنیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عمر ابن عاص سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ابو عبیدہ بن جرہ، اس کی 2 روایتیں ملتی ہیں. فرماتے ہیں اے عمر ابن عاص، ہمیں اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی ہے اسلام کی وجہ سے، ہم تو بڑی ذلت والی زندگی گزار رہے تھے،
लोग तो हमें देहाती समझते थे, अनपढ़ समझते थे। ये बनी इसराइल अरब क्या मजाक उड़ाते थे, इन्हें कुछ भी नहीं पता, ये देहाती लोग हैं। हम तो आपस में लड़ते थे, हम तो जिल्लत वाली जिंदगी गुजार रहे थे, सिविलाइजेशनल जिल्लत। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें इज्जत बख्शी है, वकार बख्शा है इस्लाम की बदौलत। और सुन लो ऐ हमारे इब्ने आस, सुन लो, कान खोल कर सुन लो, अगर हमने इस्लाम के बगैर कभी किसी चीज में इज्जत चाही, अल्लाह ताला हमें फिर से रुसवा करेंगे। देखें उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु क्या फरमाते हैं, we were the most humiliated persons on earth and Allah gave us honor through Islam. If we ever seek honor through anything besides Islam or other than Islam, Allah will humiliate us again. Imagine this scenario, imagine this statement. मुसलमान की इज्जत इस्लाम के बगैर किसी में नहीं, किसी चीज में नहीं। इसने अहद बांधा है अल्लाह ताला से, ये इसकी इज्जत किसी और चीज में नहीं। और यही पैगाम दिया था अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को कि तुम इस टीम में एंटर होते हो, नदामत के साथ इख्तियार करो, नदामत के साथ रहो। वदखुलुल बाब सुज्जदन वक़ूलू हित्तह, नदामत के साथ इसके गेट वे में जाओ, इख्तियार करो ये रास्ता, लेकिन बड़े नदामत के साथ, आजिजी लेके, नदामत लेके, और दुआ करो कि ऐ रब हमारे गुनाह बख्श दे। हित्ता लफ्ज आया, हित्ता का जो अगर आप अरबिक कनोटेशन ले लें, हित्ता कहते हैं जब जानवर के ऊपर बोझ लदा होता है, जब उसे अनलोड करते हैं तो उसे हित्ता कहते हैं, उसे हित्ता कहते हैं, याद रखिए। या अरबिक कनोटेशन में झाड़ू लगाने को भी हित्ता ही कहते हैं, यानी किसी चीज की सफाई करने को हित्ता कहते हैं, आसान लफ्जों में आप समझो। और ये लफ्ज उस सिविलाइजेशन में बनी इसराइल के टाइम पे मगफिरत के लिए इस्तेमाल होता था। जैसे हम पढ़ते हैं अफू, अफू जो हमारे लिए आज का अरबिक कनोटेशन है, हम पढ़ते हैं दुआ में अल्लाहुम्मा इन्नका अफूउन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, अल्लाह हमारे गुनाहों को बख्श दे, मफू कर दे। अफू लफ्ज है टू बी मोर अप्रोप्रिएट, अल्लाह तू तो अफू करने को पसंद करता है, महबूब है तुझे अफू करना, हमें बख्श दे, हमें अफू कर। तो ये अफू जो अरबिक कनोटेशन है बनी इसराइल के लिए हित्ता था, लेकिन अल्लाह ताला क्योंकि बनी इसराइल से मुखातिब है, इसलिए अल्लाह ताला ने वो वर्ड इस्तेमाल किया, हित्ता। जैसे इससे पहले आया मन और सलवा, मन और सलवा की ट्रांसलेशन अरबिक में भी हो सकती थी, लेकिन ओरिजिनल वर्ड लाया अल्लाह ताला ने, इसीलिए यहाँ पे भी ओरिजिनल वर्ड लाया, हित्ता। हित्ता के हित्ता के माना है किसी चीज के किसी चीज की सफाई करने को, यानी गुनाहों की सफाई, मगफिरत के माने। इसलिए मैं इसकी ट्रांसलेशन करता हूं, और दुआ करो कि ऐ रब हमारे गुनाह बख्श दे, अफू कर हमें। तो ये उस टाइम मगफिरत के लिए लफ्ज बोला जाता था, इस चीज को समझे आप। और इब्ने अब्बास भी रजी अल्लाह तआला अन्हु यही तशरीह करते हैं कि बनी इसराइल ने जो हित्ता लफ्ज इस्तेमाल किया, ये गुनाहों के इजहार में किया। अल्लाह ताला बताते हैं कि ये तुम्हें इख्तियार करना है, अल्फाज तुम्हें इख्तियार करने हैं जब भी तुम इसकी गेटवे से एंटर हो जाओगे। और ये उन्होंने नहीं अपनाया, ये पहले मैं आपको बोल रहा हूँ, ये उन्होंने नहीं अपनाया। और ये भी अपनाया कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब फतह मक्का के बाद, आपको पता है जब एक दीन का एक क्लाइमेक्स बन गया, वो फतह मक्का हो गया, फिर ताइफ के वो अतराफ भी फतह हो गए, तो कौन सी सूरह नाजिल हुई? सूरह नसर, इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह, अनकरीब है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप फतह याब करेंगे, जो इनको वादा किया था। अल्लाह ताला इन्हें फरमाते हैं जाओ इस सिटी में बफरागत खाओ, तो इसका मतलब ये इम्प्लाइड था कि वो फतह होना था, अल्लाह ताला की नुसरत थी। इन्हें कैसे विश्वास नहीं हुआ, इन्हें कैसे भरोसा नहीं हुआ कि इस सिटी को हम कैप्चर नहीं कर सकते, जबकि इन्होंने इतना बड़ा मौजज़ा देखा था, समंदर के 2 टुकड़े हो गए। लेकिन कम हिम्मती, पस्ती, बेवकूफी, कम ईमान, वो जो ईमान की जो तड़प है वो उनमें थी नहीं, भरोसा ही नहीं था अल्लाह ताला पे, तवक्कल ही नहीं था अल्लाह ताला पे, बस जाहिरी वसाइल को देखकर वो घबरा गए। लेकिन मैं कह रहा हूं आपसे ये भी कि इन्होंने इख्तियार किया, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तियार किया। जब अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब हैं, फरमाते हैं फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा, बस अपना अपना टाइम अब स्पेंड करें अल्लाह ताला की मगफिरत में। उसी का मफहूम यहाँ पे बनी इसराइल को बता रहे हैं,
فتح مکہ کا ریلیشن اس سے پہلے میں نے بتایا، اور برابر وہی الفاظ الگ مفہوم میں اللہ تعالیٰ یہاں پہ الگ، یعنی وہی مفہوم ہے لیکن الفاظ الگ الگ ہے، ٹرک سیم ہے۔ بنی اسرائیل کو جو کہا انہوں نے نہیں کیا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، صحابہ نے کیا۔ تو حتہ کے مانند ہے کسی چیز میں ندامت اختیار کرنا، گناہ کا پہلے ایکسپٹ کرنا، گناہ کا پہلے یعنی اس کا اعتراف کرنا کہ ہم گنہگار ہیں، اور اس کے لیے پھر بخشش طلب کرنا، معافی مانگنا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، اسے کہتے ہیں حتہ۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ، نغفر لکم، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تمہارے گناہ بخش دیں گے، تم مجھ سے گناہ کی بخشش مانگو، ہم تمہیں معاف کریں گے۔ اور دیکھیں آپ، انہیں کہا گیا کہ ہم آپ کو معاف کریں گے، ہم آپ کو بخش دیں گے، اور یہی ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں سورہ بقرہ کی آخری آیت میں، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، کہ اللہ ہمارے اوپر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں سہنے کی طاقت نہیں ہے۔ حتہ کا عموماً یہی درجہ نکلتا ہے جو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، یعنی وہ ایکسپٹ کرنا چاہتے تھے وہاں پہ اللہ ہماری یہ جو ہمیں فتح ہوگی، یہ کوئی اپنی قوت سے نہیں ہوتی ہے، ہم ڈسون کرتے ہیں اپنے آپ کو، ہم تو فتح کو تیری طرف منسوب کرتے ہیں، تو نے ہمیں یہ فتح بخشی۔ حتہ کا مفہوم یہ ہوتا جو کہ ہم دعا مسلمان مانگتے ہیں، صحابہ مانگتے تھے، اس کا مفہوم یہ آیت میں نکلتا ہے، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، کہ اللہ ہمارے اوپر وہ بوجھ نہ ڈالنا جس کی ہمیں سہنے کی طاقت نہیں ہے۔ اور وہ بوجھ کون سا تھا جو اس سے پہلے تو نے قوموں کے اوپر ڈالا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ بخشش مانگتے ہیں، اور اسی چیز کو ریمائنڈ کرنے کے لیے بنی اسرائیل کو کہا گیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نغفر لکم، ہم تو آپ کے گناہ معاف کر دیں گے، بخش دیں گے تمہیں، اگر تم یہ حتہ بولو گے، یہ مغفرت مجھ سے مانگو گے، میں تمہیں بخش دوں گا، ہم تمہارے گناہ بخش دیں گے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، تمہارے خطاؤں کو درگزر فرمائیں گے۔ خطایا آیا، تمہارے خطا چھوٹے بڑے سب کو معاف کر دیں گے۔ اور آگے کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم مزید فضل کریں گے، ہم حکم بجانا لانے والوں پر جو اس کریکٹرسٹک کو نبھائیں گے، جو ان چیزوں کو اختیار کریں گے، ہم اس کو مزید فضل عطا کریں گے۔ ہم تو محسن ہیں اپنے بندوں کے لیے، لیکن ان بندوں کے لیے جو احسان کرتے ہو، اللہ تعالیٰ محسن کن کے لیے ہے؟ احسان کرنے والوں کے لیے۔ اس محسنین لفظ کو تھوڑا ایمفیسائز کروں تاکہ ذہن میں بیٹھ جائے۔ دیکھیں، ایمان کے 3 درجے ہیں۔ پہلے انسان مسلمان ہوتا ہے، مسلمان سے اوپر والی جو کیفیت ہے وہ مومن ہے، اور مومن سے جو بڑھ کر کیفیت ہے، یہ ایپیٹوم ہے دنیا کے معاملوں میں، یہ محسن ہے۔ مسلمان، پھر مومن، پھر محسن۔ مسلمان کا مطلب ہے کہ جو قوانین اللہ تعالیٰ نے اتارے ہیں ان کی پاسبانی کرنا، یہ ہے مسلمان کا مطلب۔ تمہیں جو منکرات ہیں اس سے بچنے ہیں، اور جو معروف ہیں انہیں اختیار کرنا ہے، ڈوز اور ڈونٹس کو اختیار کرنا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ڈوز کہے ہیں ان کو اختیار کرنا ہے، جو ڈونٹس کہے ہیں ان سے رکنا ہے۔ یہ بنتے ہوا مسلمان، قانونی مسلمان۔ اس کے بعد ہے پھر مومن نوافل کے ذریعے سے اپنے آپ کو، اپنے درجات کو بلند کرتا ہے۔ سمجھے سٹیجز، سمجھے آپ؟ ایک ہوتا ہے قانونی مسلمان، اس کو فرض اختیار کرنے ہیں اور منکرات حرام کاموں سے بچنا ہے، یہ قانونی مسلمان بن گیا، یہ اس کو ہم کہیں گے مسلم۔ He had submitted his will to God اور her will to God، یہ ہوتا ہے مسلم۔ اس کے بعد ایک اور درجہ ہے، ایک اور اس لیڈر آف ہائرارکی میں ایک اور درجہ ہے مومن، یہ پھر نوافل بھی اختیار کرتا ہے، گوئنگ اپارٹ فرام جسٹس، جو اس سے تقاضا تھا۔ جسٹس تو یہ تھا کہ فرض کرے، فرض کو اختیار کرے اور منکرات سے بچے، لیکن یہ مزید کچھ کر رہا ہے، نوافل سے صدقہ دیتا ہے، نوافل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پکار رہا ہوتا ہے، جسٹس سے ہٹ کر۔ اس کے اوپر والا درجہ ہے محسن۔ اللہ اکبر۔ محسن کہتے ہیں ایک تو وہ نوافل بھی اختیار کرتا ہے اور مباح چیزوں سے بھی بچتا ہے، اس ڈر سے کہ اس میں کہیں شہامت نہ ہو، وہ متقی کا اعلیٰ معیار ہے۔
मुबाह किस चीज को कहते हैं? जो ऑप्शनल होंगे, लेकिन उसको अंदेशा होता है कहीं इसमें हलाकत ना हो। जैसे मैंने इससे पहले जब हमने मुत्तकी की डेफिनेशन देखी थी, फॉर एग्जांपल, मैं मार्केट अक्सर नहीं जाऊंगा, आप मार्केट अक्सर नहीं जाएंगे, क्यों? क्योंकि हो सकता है वहां बेहयाई ज्यादा हो, और आपको कोई चीज अपने ग्रोसरी स्टोर में, नियर बाय किसी स्टोर में अवेलेबल है, अगरचे वहां पे वो सस्ती मिलेगी मार्केट में, लेकिन मुत्तकी की वजह से, इस मोहसिन होने की वजह से आप उस चीज को परहेज करते हैं। हो सकता है एक फायदे, दुनिया की फायदे हासिल करने के लिए मैं बड़ा घाटा कर दूं, मेरी आंख भटक जाए, तो मोहसिन बड़ा मोहतात होता है। ये बहुत आला मयार है। मोहसिन कोई आम इंसान नहीं होता, और रेस्ट ऑफ द रेयर केसेस है। और आज के दौर में जो फितने ज्यादा है, इसमें तो बहुत बहुत इसके लिए एक सॉलिड कैरेक्टर की जरूरत है। वीक कैरेक्टर वाले तो मुसलमान में नहीं रहते, सूद खोरिया तो घर घर में है, तो मुसलमान तक नहीं है, मोमिन और मोहसिन की तो दूर की बात है। फर्ज का नारा बुलंद नहीं करते हैं, एक्सेलेंस को दूर की बात है, जस्टिस पे पूरा नहीं उतरते उतरते हम लोग। एक होता है जस्टिस, अपार्ट फ्रॉम जस्टिस देयर इज एक्सेलेंस, हम जस्टिस पे ही पूरा नहीं उतरते। मोहसिन कब बने, मोमिन कब बने? क्यों? क्योंकि हमें दुनिया के मामलात में पहले अपने आप को गोल हमें मनवाना है, हम तो मार्केट मार्केट ओरिएंटेड है। तो इन तीन एक्रीडेशंस को समझे, इन तीन लीडर ऑफ हायरार्की को समझे, मुसलमान, मुस्लिम, मोमिन और मोहसिन। तो ये तीन अल्लाह ताला बताते हैं कि मैं मोहसिन, एहसान करने वालों के लिए मोहसिन हूं, मैं उसे और ज्यादा दे दूंगा। हम तो एहसान करने वाले के लिए मोहसिन है, बेपाया दे दूंगा। लेकिन ऐसा क्यों? देखिए, मोहसिन की, अगर मैं आपको एक थोड़ा बहुत आपको एक प्रैक्टिकल बता दूं नुस्खा, अक्सर मुफस्सिरीन इस चीज को कोट करते हैं, जहन में बिठाइएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक पॉइंट है। मोहसिन के लिए अल्लाह ताला, जो मुफस्सिरीन है, सॉरी, मुफस्सिरीन हमारे लिए एक नुस्खा रखते हैं मोहसिन के लिए, कि मोहसिन इंसान बनता है जब इंसान अच्छे हालात में अल्लाह ताला की तरफ रुजू करे। एक होता है बुराई, जो आप जब तंग हालात होंगे, आपके ऊपर मुशक्कत तारी होगी, मुश्किलात में होंगे आप, तब तो इंसान रुजू कर ही लेता है, कोई चारा भी नहीं है ना। जब लोगों का सहारा उड़ जाता है, फिर अल्लाह याद आता है। चलो ये अच्छी बात है, मुबारकबाद ही है, कम से कम बहक तो नहीं गया, अल्लाह ही की तरफ रुजू किया। और अल्लाह से बड़ा सहारा है कौन हमारा? हम तो कमजोर इतने हैं, जैसा कि मैं आप बार बार कहता हूं, हम एक कदम चलते हैं 10 बार गिरते हैं, ये हमारा हाल है। अल्लाह ताला के बगैर हमारा कौन सहारा है? वो हमारे लिए काफी है। लेकिन मुबारक है उस शख्स के लिए भी जो मुशक्कत हालातों में भी अल्लाह ताला की तरफ रुजू करे, अल्लाह ताला उसके गुनाह भी माफ करता है और उसको उससे राजी भी होता है। लेकिन एक ऐसा शख्स होता है जिसके मामला बड़े खुशगवार होते हैं, वो जिंदगी के बेहतरीन मराहिलों में होता है, अच्छी इकोनॉमिक्स कंडीशन होती है उसकी, अच्छी सोशल कंडीशन होती है, फैमिली कंडीशन होती है, बड़ा अच्छा लाइफस्टाइल होता है उसका, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बहुत अच्छा होता है, जिंदगी के रिसोर्स को इख्तियार भी कर सकता है। लेकिन उस टाइम उसके दिल में ये ईमान की शम्मा रोशन होती है। उस टाइम वो तड़प रहा होता है कि मैं क्या करूं इस दुनिया को, मेरे लिए नहीं है, मैं किसी और के लिए पैदा हुआ हूं, मैं किसी और चीज के लिए पैदा हुआ हूं, मेरी ये दुनिया हकीकी नहीं है, मेरी मंजिल कुछ और है। इन हालात के बावजूद जब वो दुनिया में मस्त हो सकता था, इस कैरेक्टर को याद रखिए, हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये बड़े मोहसिन बंदू में से थे, बड़े मोहसिन बंदू में से थे। मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह तआला अन्हु बड़े मोहसिन बंदू में से थे, किसी चीज की कमी थी। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है, इस चीज को समझे आप, कान खोलकर इस स्टेटमेंट को समझिए। एक बार एक शख्स आते हैं अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास, फरमाते हैं अबू बकर को, ए अबू बकर, आप तो बड़े अक्लमंद इंसान थे, बड़े माहिर ताजिर थे, लेकिन आपको ये चीज में आप गांठा पड़ गए, आपको तिजारत करनी नहीं आई दुनिया की तिजारत में, वो कहाँ इन गुलामों को आजाद करने में बैठे हो? क्या चिंता करते हो आप कि बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु को क्या गुजरा? बस तकते रहते हो कि कुफार इन मजलूमों पे जुल्म करते हैं, आप ये समझते हो कि कब मुझे मौका मिले मैं अपनी दौलत इन पे निछावर कर दूं और इन गुलामों को आजाद करूं। मक्का की जिंदगी तो अबू बकर की थी गुलामों को आजाद करना,
ताक में रहते थे, बस कहाँ कहीं से मुझे मौका मिले मैं गुलामों को आजाद करूं। तो उनको एक शख्स आए जो कि उनके मतलब वो मर्चेंट क्लास में एक कम्युनिटी का था, मुझे अभी नाम भूल रहा है उसका। तो वो आए अबू बकर के पास कि आप तो बड़े माहिर ताजिर थे, आपको क्या हुआ? और ये जो वाक़ा है ये शाह वलीउल्लाह दहलवी अपनी तफसीर में लाते हैं सूरह असर के पस मंजर में। मुझे ये बैकग्राउंड किसी तफसीर में नहीं मिला। शाह वलीउल्लाह दहलवी अपने तफसीर में लाते हैं, जो सूरह असर का पस मंजर बैकग्राउंड उन्होंने लाया, उसमें ये वाक़ा लाते हैं। कितना यूनिक एलिमेंट है, और किसी मुफस्सिरीन से मुझे नहीं मिला है। अब वो बताते हैं उन्हें कि ए अबू बकर, तुम तो तिजारत में बड़े माहिर थे, लेकिन यहां तुमने खसारा किया। खसारा का इस्तेमाल लफ्ज करते हैं, खसारा लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। तुम तो यहाँ खसारे में पड़ गए, तुम्हें जिंदगी की तिजारत करनी नहीं आई। अब तुम अपने माल से बिल्कुल हाथ धो बैठे हो, वो कहाँ अपने माल सर्फ करते हो। अल्लाह ताला को ये खसारा जो ये लफ्ज बड़ा महबूब आया। अल्लाह ताला ने लफ्ज फरमाया, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है जमाने की, सारे इंसान ही खसारे में है। लुक एट द स्टेटमेंट, इमेजिन द सिनेरियो। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मुझे ये मुझे ये मुझे ये इवेंट इतना खूबसूरत लगा, अबू बकर की वो अबू बकर का वो सब्र मुझे इतना महबूब आया कि मैंने मैंने सूरत इसमें नाजिल फरमाई। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मुझे जमाने की कसम है, सारे इंसान ही खसारे में है। ए इंसान, तू क्या खसारे की बात करता है? तो आप तो सारी सिविलाइजेशन ही खसारे में हो। और खसारे में कौन लोग नहीं है? जो ईमान के दावेदार हैं, अमाल सालिहा करते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करते हैं, हक की पैरवी करते हैं, और सब्र की वसीयत करते हैं। ये है वो कामयाब। और वो ये चारों कैरेक्टरिस्टिक भरपूर थे हजरत अबू बकर में। यानी कि हजरत ये जो सूरतुल असर था, ये एक काइंड ऑफ एडमिरेशन था किन के लिए? अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु के लिए। मोहसिन तो ये है, इबादत तो ये है, मुत्तकी तो ये है, मोमिन तो ये है। इस चीज को समझे आप? तो मैं कह रहा हूं आपसे, मैं यहाँ पे इस इवेंट पे इसलिए आया कि मैं आपसे कह रहा हूं कि इंसान के दुख में तो इंसान अल्लाह ताला के करीब आता है, लेकिन कमाल यह है जब इंसान के मराहिल बड़े आसान हो, अबू बकर जैसे मामलात हो, जिंदगी बड़ी खुशगवार हो, उसके बाद भी वो लब्बैक कहते हैं इस ईमान के लिए। हजरत उस्मान जैसी जिंदगी हो, अबू बकर अब्दुल रहमान बिन औफ जैसी जिंदगी हो, मुसअब बिन उमैर जैसी जिंदगी हो, उस अबू जंदल जैसी जिंदगी हो रजी अल्लाह तआला अन्हु, अब्दुल्ला जैसी जिंदगी हो, हजरत सुहैल इब्न अमर के बेटे हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु वैसी जिंदगी हो, उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु जैसी जिंदगी हो। अपने कबीले के सरदार थे, उसके बावजूद भी तुम लब्बैक कहते हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिशन को। वाकई तुम मोहसिन हो। अपनी जिंदगी के उस लग्जरियस लाइफस्टाइल में हो, उसके बाद भी कहते हो नहीं नहीं, इसमें मुशक्कत है, तब भी हम इख्तियार करेंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैं इस इंसान के छोटे छोटे खता भी बख्शता हूँ। गुनाह तो ये कर ही नहीं रहा होता है, मुनकिरात से तो ये पहले ही इज्तनाब कर रहा होता है। हाँ, कभी कभार खता हो जाए, उसका मैंने जिक्र किया, और इसके दर्जात अब बुलंद करता हूँ, इस मोहसिन के मकाम पे उसको और उसको एलिवेट करता हूँ, अपलिफ्ट करता हूँ उस मोहसिन के मकाम पे। तो इसका मतलब मुशक्कत में इंसान अल्लाह ताला की तरह अल्लाह ताला की तरफ करीब तो आता ही है। ये भी मुबारक बात है, ये भी मुबारक बात है। अपने आप को मायूस करने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। बहुत बड़ा जिगरा चाहिए जब इंसान अपने जिंदगी के बेहतरीन मराहिलों में हो, फिर वो अल्लाह ताला का दीन थामे। तो आप ये क्रक्स निकाले यहाँ एक पे, इट इज अ गुड टाइम दैट रिवील द मोहसिनीन। ये नुस्खा है, मुफस्सरीन इस पे इजमा करते हैं। जिंदगी का बेहतरीन टाइम जो होता है, उसमें इंसान मोहसिनीन का अल्लाह ताला अपॉर्चुनिटी देते हैं। लेकिन ये है बड़ा मुश्किल, ये कोई आसान चीज ना समझे आप। वल्लाह, अल्लाह इज माई विटनेस टू दिस फैक्ट, आई एम टेलिंग यू, दिस इज अ डिफिकल्ट टास्क। ये कोई आम काम नहीं है। बस कोई कोई सहारा नहीं मिला, बस अल्लाह थाम लिया, ये भी कोई बात है? ये ला इलाहा इल्लल्लाह का तकाजा है। अरे कोई सहारा ना दे, और कोई सहारा दे या ना दे, तुम अल्लाह ताला को थामो, ये है कामयाबी, ये है कमाल कैरेक्टर।
اور احسان کسے کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتے ہیں، فرمائیں احسان کی تشریح فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احسان یہ ہے کہ تم عبادت کرو ایسے کہ گویا تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، نماز ایسے پڑھو کہ جیسے اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، کام ایسا کرو کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، آنکھوں کو ایسے استعمال کرو کہ جیسے اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ جب اللہ تعالیٰ کو کوئی اس اپنے ڈیپ ریئلائزیشن میں یہ ایکسپیرینس کرتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں، کیا وہ اپنی آنکھ کا غلط استعمال کر سکتا ہے؟ اپنی کانوں کا ایک غلط استعمال کر سکتا ہے؟ اپنی زبان کا غلط استعمال کر سکتا ہے؟ وہ لغو چیزیں کر سکتا ہے؟ وہ اپنی ہاتھ غلط طریقے سے استعمال کر سکتا ہے؟ وہ اپنی زبان کسی اننیسیسری چیزوں میں لگا سکتا ہے؟ اننیسیسری بحثیں کرتے ہیں، اس کا فائدہ ہی نہیں، اننیسیسری ڈسکشنز۔ اور یہ چیزیں میں نے یونیورسٹیز میں زیادہ دیکھی، کوئی ٹاپک کا مطلب ہی نہیں، اننیسیسری ڈسکشن، اننیسیسری۔ اتنا وقت حقیر نہیں ہے مسلمان کا، وقت فرصت ہے کہاں؟ کہاں اننیسیسری کلبز میں جاتے ہو، وہاں پہ ڈسکس کرتے ہو رائٹ ونگ ورسز لیفٹ ونگ، کہاں پڑے ہو؟ سمجھنے کا ایک معیار ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں اس چیز کو سمجھنا ہی نہیں ہے، یہ ٹرمز نہیں اختیار کرنے، بٹ یو نو یو آر میچور انف، الحمدللہ تم سمجھ سکتے ہو کہ ہم کہاں اپنا ٹائم اننیسیسری ضائع کرتے ہیں۔ لیکن جب انسان کا یہ ریئلائزیشن ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں، یہ محسن کا کریکٹرسٹک ہے۔ کم سے کم اگر یہ اختیار نہیں ہے، کم سے کم یہ تو تھمو، یہ تو ذہن میں رکھو کہ مجھے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اس چیز کو تو اختیار کرو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو احسان کرتے ہیں وہ گو اپارٹ فرام جسٹس، میں انہیں مزید عطا کرتا ہوں، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، وہ مجھے محسن پائیں گے، اور محسن بندوں کے لیے میں محسن ہوں، اور پھر اللہ جس کا محسن ہوگا اس کے لیے کوئی حزن نہیں، کوئی غم نہیں، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ اسے اپنے پاس پہ کسی چیز کے اوپر ریگریٹ کرنے کی ضرورت ہے، نہ اسے اپنے فیوچر کے معاملے میں کیا کھاؤں گا، میں روزی کہاں سے لاؤں گا، میں کپڑے کیا پہنوں گا، میں زندگی کیسے بسر کروں گا، یہ حقیر چیزوں میں وہ نہیں پڑتا۔ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اس کے لیے پھر کوئی خوف نہیں، میں کل کیا پہنوں گا، میرا کیریئر کیا ہوگا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں انسان کو بس چپ کر کے بیٹھنا ہے، مینز اختیار کرنے ہیں، لیکن مطمئن ہونا ہے، ندامت اختیار کرنی ہے، سیٹسفائی ہو ہی اللہ تعالیٰ کے لیے۔ دیکھیں ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ عموماً کول ایٹریبیوٹ کیا جاتا ہے رابعہ بصری کے لیے رحم اللہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے حجرے میں بیٹھے تھے، اور جیسے مسجد کا صحن ہوتا ہے اور شخص آتا ہے، وہ چلا رہا ہوتا ہے اللہ مجھ سے راضی ہو، مجھ سے راضی ہو، اللہ مجھ سے راضی ہو، اللہ مجھ سے راضی ہو، ایسا پکار رہا تھا مسجد میں، اے اللہ مجھ سے راضی ہو۔ ان کو جلال آیا، فرمایا یہ کیا کر رہے ہو، چلا رہے ہو بس مجھ سے راضی ہو، پہلے تو راضی ہو، وہ تو راضی ہے ہی، تو راضی ہو، کیا تو راضی ہے اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پہ؟ کیا تو راضی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پہ کہ مجھے اور کوئی طریقہ پسند نہیں ہے، اب مجھے اور کوئی طریقہ نہیں ہے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر، مجھے کوئی اور طریقہ نہیں چاہیے، میرے لیے کافی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت نبی، رضیت باللہ ربا، میں راضی ہوں اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پہ، وہ بھی محمد رسولہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پہ راضی ہوں، مجھے اور کوئی شریعت نہیں چاہیے، مجھے کوئی اور لائف سٹائل نہیں چاہیے، مجھے اور کوئی کلچر نہیں چاہیے، مجھے اور کوئی تہذیب نہیں چاہیے، میرے لیے کوئی اعتماد نہیں، میں زندگی گزاروں گا، میں اپنی فیملی لائف گزاروں گا، میں اپنی زندگی کے ہر شعبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیزیں حاصل کروں گا، وہ میرے اکیلے تنہا یکتا گائیڈ ہوں گے، مجھے کسی چیز سے اور کوئی رہبری ضرورت نہیں ہے۔ کیا اس پہ راضی ہو؟ تم تو سیولائزیشن کے چھوٹے چھوٹے چیزوں کو دوسروں سے بورو کرتے ہو، اتنے حقیر ہو، پہلے خود تو راضی ہو اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پہ، لیکن نہیں ہے، ہماری سیولائزیشن نہیں ہے، میں آپ کو یہ دو ٹوک کہتا ہوں، واللہ نہیں ہے راضی، ورنہ یہ سود میں پڑے نہیں ہوتے۔ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میرے خلاف جنگ ہے، یہ سود، لیکن کرتے ہیں سود اختیار، ان کو لگتا ہے کہ نہ اللہ تعالیٰ کافی نہیں ہے، ہماری پرسنل انکم جو حلال انکم وہ ہمارے لیے کافی نہیں ہوگی، ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافی نہیں ہے۔ جب بیک کی طرف اپروچ کرتے ہیں ہماری سیولائزیشنز میں، گھر گھر کی بات کر رہا ہوں میں، نہیں ہے ہم راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر، کلام کچھ بھی کہے، جب اس کا قول اس کا ساتھ نہیں دیتا ہے وہ منافقت ہے۔
गद्दारी है, बगावत है। हमने इससे पहले नहीं पढ़ा बनी इसराइल के लिए, जब अल्लाह ताला बनी इसराइल से खिताब कर रहे हैं तो फरमाते हैं कि ए बनी इसराइल, तुम क्यों उस चीज का अमर करते हो, उसकी तलकीन करते हो, उसकी वजाहत फरमाते हो जिस पे तुम पूरा नहीं उतरते। अतअमुरुन अन्नास बिल बिर, उस बिर का हुक्म क्यों देते हो जबकि तुम पूरा नहीं उतरते खुद। वतनसौना अनफुसकुम, अपने आप को भूल जाते हो। क्या वाकई हमें इत्मीनान है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने पर? उनकी जिंदगी का, उनकी उनका उनका तरीके जिंदगी हमारे लिए काफी है। हमें कोई जिंदगी का कोई मॉडल नहीं चाहिए। आप एक बच्चे को देखें, हमारे कॉमन स्टेटमेंट जाए, 12 बजे होते हैं उसके चेहरे पर, लग रहा होता है किसी तरीके से मुसलमान का इसमें कैरेक्टरिस्टिक है। हमारे सड़कें गली देखें, आप कोचे देखें, लगते हैं मुसलमानों की बस्तियां हैं, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, लगते हैं। 12 बजे होते हैं हमारे चेहरों पर, कंधे झुके हुए होते हैं, हमेशा अपोलोजेटिक एटीट्यूड। ये मुसलमानों की सिविलाइजेशन है। और दावा करते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुहिब होने का। इल्ला माशाल्लाह, मैं फर्दन की बात नहीं करता, लेकिन अगर कोई इंसान हो भी, लेकिन जब इज्तिमाई शऊर नहीं होता तो वो इनफरादी लेवल किस काम की। आप एक फर्द कितने भी मुत्तकी हैं, लेकिन माशरा आपका अगर बिगड़ा हुआ है तो आपको मुत्तकी नहीं कहा जाएगा, ना आपकी इज्जत होगी, ना आपका वकार होगा। आप जाने जाते हो अपने सिविलाइजेशन के नाम से, सोशल लेंस से आपकी ताबीर होती है। इनफरादी हैसियत है तुम्हारे लिए, अगर तुम हक की तलकीन करते हो सकता है अल्लाह ताला फिर कबूल करे हमें, अल्लाह ताला हमें कबूल करे। हम हकीर इंसान हैं, कहा जा सकते हैं अल्लाह ताला की रहमत के बगैर, लेकिन इनफरादी हैसियत कहीं कहीं कोई काम नहीं आती जब तक इज्तिमाई शऊर हमारे अंदर नहीं है। आगे चले, आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं फबद्दल ज़लमू क़ौला, और इन्होंने क्या किया, जो ये जालिम लोग थे, अल्लाह ताला फरमाते हैं तो जिन्होंने जुल्म किया, और जुल्म फिर से आया, देखें जुल्म अब अक्सर आता है नाफरमानी के लिए जुल्म लफ्ज। और मुझे नहीं लगता कि अभी आज जरूरत है इस चीज को वजाहत करने की क्यों अल्लाह ताला नाफरमानी को जुल्म की ताबीर देती है। बार बार मैं ये कह रहा हूं, आप ये आए दिन हर ऑलमोस्ट हर किसी सूरह में ये पैटर्न पाएंगे, नाफरमानी को अल्लाह ताला जुल्म की ताबीर देते हैं। जुल्म क्यों? जो चीज जहां जस्टी है मैं उसे वहां पे ना रखूं, या उसके साथ जुल्म। मुसलमान का ये कौल नहीं है वो ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़े और गद्दारी भी करे, किसी का हक भी मारे। अगर ये करता है तो जुल्म करता है। और दूसरों की क्या बात करते हैं हम तो खुद अपने आप पे जालिम हैं। मैं अपने आप पे वल्लाह इंसाफ नहीं करता। ये जो 5 फुट मेरा जिस्म है मैं इस पे इंसाफ नहीं करता, मैं इस पे भी जालिम हूँ, इतना हकीर हूं मैं इस पे भी, इस 5 फुट इंसान पे भी, मैं जो अब मेरा खुद का जिस्म है, ये मेरे हाथ है, मैं इसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करता। ये हाथ मुझे मुझे नजर नहीं आते, ये चला रहे होते हैं जब मैं इसको अल्लाह ताला की नाफरमानी के लिए इस्तेमाल करता हूँ। मेरी आंखें मुझे मेरे ऊपर कोसती है, बगावत की बू आती है इससे, नफरत करती है मेरे वजूद से जब इन आंखों को गलत इस्तेमाल करता हूँ, तो जुल्म करता हूँ इन आंखों पे। ये फरिश्ते बैठे होते हैं, देखिए हर किसी चीज पे फरिश्ते लगे होते हैं, वो तुम्हारे लिए एक ब्यूरोक्रेट की तरह काम करते हैं, पब्लिक सर्वेंट्स का काम करते हैं। तुम फ्रिक्शन इस्तेमाल करते हो, तुम जिंदगी में इस जमीन पे चलते हो तो ये जमीन आपकी इत्तेबा करती है। लेकिन ये जमीन की जो ये सनद है, ये क्योंकि अल्लाह ताला के जिक्र की महबूब है, ये चाहती है कि मेरे इस जमीन पे ये जो मैं हूं, मेरा मेरा जो ये ढांचा अल्लाह ताला ने बताया, इस पे अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन तुम्हारे जुल्म की वजह से तुम इसके ऊपर भी जुल्म करते हो। इस जमीन नहीं चाहती है कि कहीं अल्लाह ताला की बगावत हो, लेकिन इस जमीन पे जब जुल्म होता है, जब गुनाह करता है एक इंसान, तो ये जमीन चला रही होती है। एक गद्दार इंसान, तूने मेरे ऊपर भी जुल्म किया, अपना तो बेड़ा गर्क कर ही दिया, मुझे भी उसमें गोता लगाया। उन पत्थरों की बात करते हैं जो ये पत्थरों को पूजते हैं। मिसाल के तौर पर जो मैं ये बिल्कुल एक सिनेरियो ट्रेस आउट कर रहा हूँ, लात उज्जा मन्ना, वो जो पत्थर, वो जो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए वो पत्थर बनाने के लिए, क्या वो पत्थर नहीं चला रहा होता? ए हकीर इंसान, तूने मेरे ऊपर भी जुल्म किया, तूने मुझे आग का ईंधन बना दिया, कल के लिए जहन्नम का ईंधन बना दिया, टू बी मोर अप्रोप्रिएट। तो ये जुल्म करता हूं अपने ऊपर, अपने जिस्म के ऊपर, इस कायनात के ऊपर, अल्लाह ताला के खिलाफ। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं तो जिन्होंने जुल्म किया उन्होंने बदल दिया उस बात को जो उन्होंने कही थी, कौला, किससे? गैरल्लज़ी, दूसरे किसी कौल से, दूसरे किसी बात से। यानी अल्फाज में भी
को अल्फाज को भी बदल दिया और अपनी हरकतों को भी बदल दिया। अल्लाह ताला ने क्या इनसे कहा था अगली वर्स में क्या कहा था? हित्ता, मगफिरत तलब करो, वदखुलुल बाब सुज्जदन, सजदे में नदामत के साथ अंदर हो जाओ इस बस्ती में। लेकिन इन्होंने क्या किया? कौल को भी बदल दिया, एक्शंस को भी बदल दिया। एक गूंज, जो गूंज होते हैं ना सोसाइटी में, जो वो रोड साइड गूंज होते हैं, उनकी तरह ये बस्ती में दाखिल हुए। और हमें तौरात में मिलता है, हालांकि इससे इख्तलाफ कर सकते हैं आप, उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया हिंता। हिंता कहते हैं गेंदरी को। आई एम सॉरी, 1 सेकंड, गिव मी अ मोमेंट। जी, तो उन्होंने हित्ता के बदले हिंता का इस्तेमाल किया। हिंता कहते हैं फूड ग्रेन्स को। वो भूखे थे ना, 40 साल से मन और सलवा खा रहे थे, वो भूखे थे, तो बता रहे थे बस हमें खाना चाहिए। कोई शऊर नहीं था उनमें, वो गूंज की तरह वो दाखिल हुए उस बस्ती में। इमोरलिटी की हद थी, तो उन गूंज की तरह वो दाखिल हुए उस बस्ती में। और अल्फाज का भी कोई एतबार नहीं था, अल्फाज भी बदल दिए, हिंता क्या कहा, और अपने रवैये से भी बिल्कुल अलग इंसान थे। तो ऐसा मतलब मालूम होता है कि जैसे बगावत कर रहे थे अपनी हरकतों से, अल्फाज को भी बदल दिया, कोई नदामत नहीं थी इनमें। जैसे मैंने कहा, जब एक अनसिविलाइज्ड कौम जिसमें कोई शऊर नहीं, जब वो किसी चीज को कैप्चर करती है, कैसे कैसे करती है? मंगोल एम्पायर ले ले जहन में। मंगोल एम्पायर जब बगदाद में दाखिल हुई, क्या किया? बैतुल हिकमा को जला दिया, दरिया को स्याही में बदल दिया, खून में बदल दिया। खून रेजी करते हैं, कत्लो गारत करते हैं, जुल्म करते हैं, मासूमों को मारते हैं, जो उनके मजहब का मानने वाला नहीं है उनको कत्ल करते हैं, बदकारी करते हैं, गुलछरे उड़ाते हैं। तो इस सिंबलाइजेशन से आप सुने, इनका यही हरकत है। और इन्होंने आगे यही किया भी, इस टाइम नहीं किया, लेकिन आगे चलकर इन्होंने यही किया। हर कोई बदकारी में मुल्लविस रहे। और एक बदकारियों का जो स्पेक्ट्रम है, आप जहन में रखें क्या क्या कर सकते थे, क्योंकि टाइम निकल रहा है, मुझे एक आयत कंप्लीट करनी है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्होंने उस कौल को बदल दिया, उस फैल से, उस अमल से, जो उनको नहीं करना था, दूसरे किसी चीज से। जो मैंने कहा, हित्ता कहना था इनको, ए अल्लाह हमें बदल दे, हमें माफ फरमा, हमें अफू कर, हमारे गुनाहों को बदल दे नेकियों में। इन्होंने कहा हिंता, फूड के लिए क्रेव कर हो रहे थे, हमें ग़िज़ा चाहिए। जैसे वो भेड़िया आता है, वो भूखा होता है, बस शिकार करता है, वैसे ही इनकी हालत थी। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो इनमें से ये लोग थे, फिर अल्लाह ताला ने इनको क्या किया? फअंज़लना अलल लज़ीना ज़लमू रिजसम मिनस समाई बिमा कानू यफसुकून। अल्लाह ताला फरमाते हैं, बस हमने उन लोगों पर जिन्होंने जुल्म किया, जो इस जुल्म के इर्तिकाब कर रहे थे, उन नाफरमानी के सबब, जो उन्होंने इख्तियार की, जो वो जुल्म किया, जो वो नाफरमानी इख्तियार की, उसके सबब मैंने आसमान से अजाब उतारा। अब अजाब की मुस्ताक थी। अब अजाब किस शक्ल में उतारा इनके लिए? इनको वहां पे स्किन डिजीज फैल गई, प्लेग फैल गया। अभी आसमान से कैसे उतारा? अल्लाह ताला जब किसी चीज को, जो अल्लाह ताला खुद किसी चीज में नाजिल फरमाते हैं, तो आसमान की तरफ हम उसकी तजबीह देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कई जगह क्लाउड बर्स्ट होता है, हम कहते हैं ना आसमानी कोई बला उतरी, बस बिगाड़ दिया इसे। वरना आसमान कहीं ऊपर वाला स्टेट है, बहुत ज्यादा है। वरना ये अल्लाह ताला जमीन ही से कोई किसी रिसोर्स को हुक्म देता है, इस सिविलाइजेशन को तबाह करो। जो प्लेग होता है, किसी फॉर एग्जाम्पल कोई वायरस डेवलप होता है, वो जमीन में ही होता है, लेकिन अल्लाह ताला, चूंकि अल्लाह ताला के हुक्म से वो होता है, इसीलिए वो तजबी होती है आसमान की तरफ, क्योंकि अल्लाह ताला बुलंदी की तरफ है, वो आसमान से मंसूब होती है। इसलिए आया फअंज़लना अलल लज़ीना ज़लमू, हमने लोगों पर जिन्होंने जुल्म किया, उस नाफरमानी के सबब हमने नाजिल किया अजाब आसमान से, उस फिस्क पे, उस फसाद पे जो वो कर रहे थे। और उमूमन ये हमें मिलता है हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट से, तौरात भी इसकी गवाह है कि 24,000 बनी इसराइल के वहां पे उस प्लेग में मर गए, उस एपिडेमिक में। एपिडेमिक था ना, वो एपिडेमिक फिर पेंडेमिक पे बदल गया, जो हमारे पास कोविड-19 था। उसमें डेथ रेट तो बहुत कम थी, लेकिन जब प्लेग किसी जगह होता है ना, मिडिवल टाइम्स में आप देखें, अफ्रीकन प्लेग देखें, जो कॉन्गो बेसन रीजन है उसमें देखें, वहां कितने वो हॉटस्पॉट है, वो प्लेग्स का हॉटस्पॉट है, वो वायरसेस का।
प्लेग या ऊपर वाला आइसलैंड, स्वीडन के जो आज वाले इलाके हैं, वहां से हॉट स्पॉट्स निकलते हैं वायरसेस के, बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज होता है, जो जो चीजें, जो जमीन बर्फ से ढकी हुई थी, अब क्लाइमेट कंडीशंस की वजह से जब ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, अब वो वायरस रिलीज होते हैं। और हो सकता है कोई भी ग्लोबल पेंडेमिक आ सकता है या लोकल एपिडेमिक आ सकता है। तो वो वही चीजें उनके ऊपर भी नाजिल हुई, प्लेग की शक्ल में 24,000 हलाक किए हुए, वो सब जालिम थे। और कोई लंबी चौड़ी दुआ इनको नहीं कही थी अल्लाह ताला ने, कोई लंबी चौड़ी दुआ नहीं थी इनके लिए। जैसे फिर भी अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम के लिए तो कॉल रखा था, फिर भी रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। इनके लिए एक मुख्तसर कलाम था, हित्ता हित्ततुन, पढ़ लो बस काम हो गया, हमें बख्श दिया अल्लाह ताला। उसको भी तब्दील किया, हरकतों में भी और कॉल में भी, हिंता कहा। इस चीज को समझे आप। इसका मतलब उन्होंने कौन सा रास्ता इख्तियार किया? इब्लीस का रास्ता। देखें, आदम अलैहिस्सलाम का इससे पहले मैंने जिक्र किया, आदम अलैहिस्सलाम को कहा जो मर्जी है यहां से खा लो, रगदन लफ्ज, और इनको भी यही कहा। लेकिन इन्होंने आदम अलैहिस्सलाम का रास्ता नहीं इख्तियार किया, तौबा नहीं की। देखें आप, देखें, वल्लाह मैं आपसे कह रहा हूं, आप कुरान को 3D व्यू से देखिए, आपको मौजज़े नजर आएंगे। जैसे हम सर्कल कंप्लीट कर रहे हैं, देखिए आदम अलैहिस्सलाम का सर्कल हम कंप्लीट कर रहे हैं। आदम अलैहिस्सलाम, क्योंकि इंसान अगर बनी आदम होता वो मगफिरत तलब करता, इन्होंने मगफिरत तलब नहीं की, इन्होंने सजदे से इनकार किया, मगफिरत से इनकार की। इमेजिन, ये मगफिरत से इनकार, सजदे से इनकार किसने किया था? जवाब चाहिए मुझे, क्या आदम ने या इब्लीस ने? मुझे बताएं जरा, जवाब चाहिए आपसे, माइक्रोफोन ऑन करें। इब्लीस ने। इब्लीस ने। तो इन्होंने आदम को छोड़कर इब्लीस की पैरवी। जैसे इब्लीस फिर रुस्वा हो गया, ये भी फिर अजाब इनके ऊपर आया, बहक गए, यफसुकून, रिबीलियस बन गए, बगावत इख्तियार की। और फिसिक किसे किसे कहते हैं, इसकी वजाहत आगे मैंने करी हुई है। फिसिक कहते हैं जब आप किसी रास्ते पे चलते हैं, बस उस रास्ते पे आप उतर गए तो ये फिसिक आपने किया। पहले आप इहदिना सिरातल मुस्तकीम पे थे, अब उससे भटक गए तो फिसिक में आ गए। जो गोल आपसे एक्सपेक्टेड था वो नहीं किया तो फिस्क किया, फसाद किया, लाशूरी इख्तियार की। तो आप देखें कैसे इस, आप होलिस्टिक व्यू से इन आयतों को देखें। आदम का किस्सा, आदम को कहा गया है फ्रीली यहाँ पे खाओ जो मर्जी है, इनको भी कहा। फिर आदम का रास्ता छोड़कर, जो कि तौबा किया था आदम ने और अपने आप को सुरखरू किया था, इन्होंने आदम को छोड़कर इब्लीस का रास्ता इख्तियार किया। फिर अल्लाह ताला ने इनके ऊपर अजाब तारी किया। और इस सारे सिनेरियो में आप मूसा अलैहिस्सलाम की पोजीशन देखें, वो मूसा अलैहिस्सलाम। आई नो थोड़ा सेशन थोड़ा लंबा हुआ आज, बट गिव मी जस्ट 1 more minute, 1-2 minutes, आई एम कंक्लूडिंग द सेशन नाउ। मूसा अलैहिस्सलाम, आप ये समझे, मूसा अलैहिस्सलाम की पर्सनैलिटी देखें, वो बड़े जब्बार थे, जैसे मैंने कहा, कितना उन्होंने बर्दाश्त किया। देखें आप उनकी पर्सनैलिटी देखें, एक इंसान हमला कर रहा है एक इंसान के ऊपर, बनी इसराइल के ऊपर, और इजिप्शियन उस बंदे को, मूसा अलैहिस्सलाम, एक थप्पड़ में उसको मार दे। बड़े जब्बार पर्सनैलिटी थी। बस खता सरजद हो गए, निकल जाते हैं, फिर जॉर्डन चले जाते हैं। वहां पे उन औरतों का किस्सा आप देखें जो पानी लेने गए थे, अकेले लड़ पड़ते हैं उस पूरे हर्ड से। जब्बार पर्सनैलिटी थी ना। अच्छा, सूरह कहफ में मिलता है, खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा उनको, बस खामोश रहो, जो मैं सवाल करता हूँ बस सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं। एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी थी ना मूसा अलैहिस्सलाम। इसके बावजूद भी उन्होंने कितना पेशेंस दिखाया होगा बनी इसराइल को, कितना पेशेंस। देखें, एक आदमी इंट्रोवर्ट होता है, उसकी पेशेंस की लेवल कम, उसकी पेशेंस की लेवल बहुत ज्यादा होती है। लेकिन कोई एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी होती है, उसको पेशेंस रखना ये बहुत कमाल होता है। क्योंकि इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी की अलग वीकनेसेस होती है और एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी का इम्तिहान अलग होता है। ये मूसा अलैहिस्सलाम का इम्तिहान बड़ा जबरदस्त था। वो इंसान जो कि देख ही नहीं पाते, ये इनजस्टिस को गवारा ही नहीं करते। मूसा अलैहिस्सलाम के खड़े, मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के सामने खड़े हो गए, उस बदबख्त के सामने खड़े हो गए, वो जालिम इंसान तनहा खड़े खड़े हो गए। एक तनहा हारून था अलैहिस्सलाम, अकेले लड़ पड़े और एक थप्पड़ में उस इंसान को मार दिया। इजिप्ट में अकेले लड़ पड़े पानी के टाइम पे। खिज़र अलैहिस्सलाम कहते हैं सवाल ना करो, ये करते ही गए, करते ही जा रहे हैं। एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी है ना, बर्दाश्त नहीं होता है, क्यों? लेकिन इन्होंने कितना बर्दाश्त किया होगा बनी इसराइल को। इसीलिए आता है कि जब
موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تھک گئے، پھر کہتے ہیں اللہ اب میں ہار گیا ہوں ان سے، بس مجھے فرق کر دے، ان سے فرق کر دے، مجھے اب الگ کر دے، مجھے ان سے اب بے کنار کر دے، میں ان کے ساتھ اب رہنا نہیں چاہتا. ایک کائنڈ آف یہ بددعا تھی ان کے لیے. جب انہوں نے حد پار کر دی، ایک انسان کو کتنا برداشت کر پائیں گے آپ؟ نبی آخر کتنا برداشت. بنی اسرائیل معجزوں کے اوپر ٹھکرا رہے ہیں، غداری کر رہے ہیں، تو ان کے لیے پھر عذاب مقدر تھا. تو اسی لیے اس چیز کو ہم یہی نعمتیں ابھی ختم نہیں ہوئے، یہ نعمتیں ابھی اور چلیں گے. پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ آئے گا، لیکن یہاں تک ایک سیولائزیشن ایک کمپارٹمنٹ ڈسکس ہوا، اور یہی ہمارا رکوع بھی کمپلیٹ ہوتا ہے. اس کے بعد الگ کمپارٹمنٹ ہوگا انشاءاللہ، اسے ہم اگلے سیشن میں دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، وما علینا الا البلاغ. آپ اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں. جی سر مجھے یہ پوچھنا تھا، آپ نے بتایا نا کہ نئی جنریشن تیار ہو رہی تھی ایک حساب سے ون سوشل سیکنڈ میم، لیٹ می اسٹاپ دا ریکارڈ.